Very good morning. I think I'm audible. Yes. And thank you so much for us to giving you the opportunity कि हम आपको थोड़ा सा nutritional elderly बता सके. But according to me, I will first introduce myself. I am Mrs. Rashmi Bhatia. I'm a nutritional psychologist and I have got experience of more than 28 years in this line. And since COVID, we have been working on mental health also. But I really want to say that at this age, you are totally blessed. मतलब हम आपकी उम्र तक शायद नहा पहुंच पाए इतने hale and hearty and healthy, but we don't call you elderly or old. It's only a physical changes and biological changes. Yes. You're so lively and energetic. Yes, and we are feeling so blessed that we have got an opportunity to address to you. But I think we will be learning more from you. आप हमसे इतना नहीं सीखेंगे जितना हम आपसे सीखेंगे क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है एंड फिजिकली मेंटली आप हमसे मच बेटर हैं. So we will continue. Although this slide is nutrition elderly, although it's I will say wrong slide. It should be a nutrition in a good age and a healthy age. I am Chuchi Sharma. I am also a nutritionist at Women's. I have been working with women from past 20 years. And as ma'am said, we are working more towards mental health now. But this is a topic which is very close to our hearts because हमारे भी parents हैं आपकी एज वाले. तो हर दूसरे दिन यही टॉपिक हो रहा होता है, आप क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी ऐसी चीज़ खाएं कि डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहे. तो इसीलिए ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने यहाँ से आए हैं. Again, old age is a privilege, social success and challenge. And again, जो मैं ये दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि आप इस एज में you're enjoying your life. क्योंकि हम हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं एक्चुअली, एंड वी हैव सीन कि यंगर एज बहुत ही बेसिकली फिजिकली इनएक्टिव है, मेंटली बहुत वीक है, इमोशनली बहुत वीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक है, इतनी एलर्जीज है. कभी कभी हमारे लिए बहुत मेंटल ट्रॉमा होता है कि हमको डाइट चार्ट क्या दें. इतनी एलर्जीज है, चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, फाइबर नहीं खा सकते एंड एट वेरी यंग एज. सो अगेन इट्स अ प्रिविलेज एंड इट्स अ सोशल आई विल से सक्सेस एंड चैलेंज. एंड एनीवेज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप इस एज को एंजॉय कर रहे हो. Big clap for all of you. Big clap for all of you. It's a blessing for us that we are able to come here and address you on this issue. It's a big blessing for us. And again, it's a continuous change. It's a process which starts from prenatal and it ends continues to the end of the life. जब तक हमारी सांस है, तब तक हमारी physical changes, biological changes, emotional change होगा ही होगा. ये continuous process है which we cannot change. So again, we should enjoy and accept each and everything which is going to our body. And it is not a disease. Old age is not a disease. It is a number only. और जो हमारे मेंटली डिपेंड करता है. कई लोग 40 इयर्स में भी बहुत वीक होते हैं, कई लोग 90 इयर्स में भी हेल एंड हार्टी हैं. एंड Rightly said, ma'am, old age is a process. Prenatal age में बच्चा क्या कहता है? 4 years old, 5 years old. बच्चा ये नहीं कहता I am 5 years young. So don't consider अगर 60 या 65 है तो you are old. It is just a number which is going on and on and on. You are not. You are not. Yes. So क्योंकि नेचर ने हमें बॉडी दी तो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होते ही रहेंगे. अगेन 65 to 74 यंग ओल्ड होते हैं, 75 से 84 ओल्ड हो सकते हैं एंड 85 से अबव ओल्डेस्ट ओल्ड होते हैं. बट वी से देम दे आर नॉट ओल्डेस्ट ओल्ड, दे आर डायमंड पीपल्स. यस, दे आर डायमंड पीपल. पहले कहते थे लोग 60 साल में सठिया गए, पर हमें लगता है कि 20 साल में भी आजकल बच्चा सठिया रहा है. तो 60 साल में कोई नहीं सठियाता. दे आर एक्सपीरियंस, दे आर 20 years plus 40 या 50 years experience of their life. So we say it's a golden age which they are enjoying, golden and diamond age. And we consider it is a geriatric nutrition. When we talk about nutrition for elderly above, people above 50 years, 55 years, we call it geriatric nutrition. क्योंकि बिकॉज फिजियोलॉजिकल और आपका बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इंटरनल सिस्टम वीक हो जाता है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. बट अगेन आप लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, सो यू नो यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी डाइट एट दिस पर्टिकुलर एज. इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव, आपका गट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप हर चीज़ डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर सकते हो. अगर आपको कोई और कंडीशंस नहीं है, जैसे डायबिटीज़ नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है,
अगर ये इश्यूज नहीं है, कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई है, कोई आप मेजर एंटीबायोटिक्स या इस पे नहीं है, तो आप ये लाइफ भी बहुत अच्छी तरह खा के एंजॉय कर सकते हैं। अगेन इफ यू हैव एनी क्रॉनिक कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन है, कार्डियक वेस्कुलर डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है या डिमेंशिया है, तो हमें डाइट का थोड़ा चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगेन विद मेडिकेशन, लाइफस्टाइल एंड healthy diet and what kind of nutrition you should have, what amount of nutrition you should have, right combination of nutrition, gaps नहीं होने चाहिए, that is more important. And it's been saying कि every body is different. आप किसी की डाइट फॉलो नहीं कर सकते, चाहे वो डायबिटिक है चाहे वो हाइपरटेंशन है, क्योंकि सबका जेनेटिक अलग है, सबका डीएनए अलग है, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, हर किसी की फिजिकल एक्टिविटी भी अलग है, हर किसी का स्ट्रेस लेवल भी अलग है. सो नो डाइट इज सिमिलर फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल. So now we'll talk about effects of aging. There are two major effects when we hit the aging factor. One is physiological and the other is socio-psychological factor. Physiological changes, what we can see: loss of teeth, graying of hair, decreased neuromuscular coordination. चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बोन में इशू हो रहा है, बोन डेंसिटी लो हो गई है, बैलेंस नहीं बन पा रहा चलते हुए, impaired hearing and failing vision. एनोरेक्सिया, डोंट फील लाइक ईटिंग, भूख कम हो गई है, एपेटाइट जो मैं 30-35 में खाती थी, अब मेरी एपेटाइट वो नहीं है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग सर्टेन काइंड ऑफ फूड, आई डोंट फील लाइक ईटिंग सर्टेन मील्स, कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं अच्छा लगता करना, आई लाइक टू हैव ओनली फ्रूट्स, या मैं यूजुअली डिनर स्किप कर देते हैं या लंच स्किप कर देते हैं. तो इट इज एनोरेक्सिक बिहेवियर कि आपका दिल नहीं कर रहा खाने का. फिजिकल डिस्कम्फर्ट है खाने में, चलने में, डाइजेशन में. चेंजेस इन बॉडी कॉम्पोजिशन, बीएमआर लो हो रहा है, मसल मास लो हो रहा है, वेट कम होता है, बोन डेंसिटी कम होती है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है. एंड ऑल्सो चेंजेस इन योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन श्रिंक हो जाती हैं, आर्टरीज वेन्स श्रिंक हो जाते हैं. तो जो हम पहले खाना खाते थे और पचाते थे, इस एज में आके उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कम होता है, उसी तरह डाइजेशन भी वीक होता है. छोले राजमा जो आप 30-35 में अच्छी तरह एंजॉय करते थे, वो आप लिमिटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंजेस विच आर गोइंग इन द बॉडी. चेंजेस इन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एज आई सेड कि वेन्स आर्टरी श्रिंक हो जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड फ्लो बीपी के हिसाब से ऊपर नीचे रहता है. चेंजेस इन योर रीनल फंक्शन, ब्लैडर मूवमेंट कैसी है, यूरिन कितना जा रहे हैं, रीनल कितना आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कितना एक्सक्रीट कर पा रहा है, हाउ स्मूथ इज योर स्टूल. चेंजेस इन रेस्पिरेशन, लंग्स कितने एक्टिव हैं. कोविड के बाद ये प्रॉब्लम सबको हुई है, लंग्स का, ब्रीदिंग का इश्यूज, हाउ हैवी इज योर ब्रेथ, कितना स्टेप्स लेके आपको ब्रीदिंग हैवी होती है. एंड चेंजेस इन योर स्केलेटल इश्यूज, बोन्स है, नर्व्स हैं, कितनी एक्टिवली काम कर रही हैं. जो सोशल साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हमारे फूड हैबिट्स में आते हैं. फूड हैबिट्स में बिकॉज ये जो हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, तो हमारी एपेटाइट कम हो जाती है, एकदम से हम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं खा पाते हैं. हमें स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स वी आर सपोज टू हैव, क्योंकि जितना थोड़ा खाएंगे उतना इजीली डाइजेस्ट होगा, उतना इजीली एब्जॉर्ब होगा. और बहुत जगह इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आ जाता है, कई बार लोग अकेले रह जाते हैं, इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है कि वेदर हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते. बिकॉज एट दिस एज हमें गुड अमाउंट ऑफ, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, गुड क्वालिटी ऑफ फैट, गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि अमाउंट कम हो जाता है. बट वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी. क्योंकि जो हम पहले 3 रोटी खा पाते थे, तो शायद हम इस टाइम 1 रोटी खा पाए. वो जो 1 रोटी भी है, दैट शुड बी कैलोरी डेंस, हाई प्रोटीन डेंस एंड गुड क्वालिटी ऑफ, उसमें फाइबर भी होना चाहिए. एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज, कई बार हमने बहुत बार देखा है कि कईयों को आदत होती है वो गिन के खाना है, 4 रोटी ही गिन के खाएंगे, और परांठे भी 4 ही खाएंगे, पूड़ी भी 4 खाएंगे, भटूरे भी 4 खाएंगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता ये बात कि हमारी भूख इतनी नहीं है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं होती है बेसिकली, कि हम जो बचपन से खा रहे हैं, हमारे बड़े लोगों ने भी यही खाया था, तो हमें भी यही कंटिन्यू करना है. इफ वी आर, अगर हम अकेले रह जाते हैं तो कई बार डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, एंग्जाइटी की आदतें, तो भी हम यहाँ बहुत एक्स्ट्रा खाते हैं या हम एकदम नहीं खाते हैं. कई बार हाउस हेल्प नहीं होती है हमारे पास, तो कोई खाना बनाने वाला नहीं होता, एंड बाहर का हम खाना इतना प्रॉपरली
डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि सिर्फ दूध ले लें, रस ले लें, ब्रेड मक्खन ले लें, रस ले, फ्रूट्स ले लें, दैट इज ओके। कई बार लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम भी हो जाता है जब हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, एंड लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस भी। अगर हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे बहुत लोग कई बार बेड रिडन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बेड रिडन होते हैं तो प्रोटीन ब्रेकडाउन भी बॉडी का बहुत होता है। उस टाइम भी हमारा, और हम जब डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें वॉशरूम के लिए भी किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है, एंड नहाने के लिए भी किसी को बुलाना पड़ रहा है, कोई हमें खिला रहा है, तो भी हमारी एपेटाइट पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस टाइम पे हमें बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग की बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे साथ बॉडी में हो रहा है, इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए हमें ना एंग्जाइटी होनी चाहिए, ना डिप्रेशन होना चाहिए, ना हमें अपने को गिल्ट होना चाहिए, बट वी शुड इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। Benefits of healthy eating as you age. Live longer and stronger. For healthy living, you need to have a healthy diet. बचपन से कहते हैं बैलेंस डाइट लेना है, बट ये नहीं है कि इस एज में आके you will stop on the balance part. You have to maintain that balanced diet of carbohydrate, protein, fiber, nutrients, everything. Sharpen your mind. Omega-3 fatty acids, good fats are good for your brain. Your brain functioning also diminishes, degenerates. The brain also degenerates with age. उसके लिए to sharpen your mind, you should have good fats, good diet which is good for your brain and your mental well-being. You feel better when you eat good food. Is it right? Yeah. You feel better when you eat a balanced diet that has all the nutrients. Special nutrition needs for elderly. Energy. अब लोगों को लगता है हम ओल्ड हो गए हैं, BMI कम हो रहा है और फंक्शनिंग ज़्यादा नहीं है, तो वी शुड कट डाउन ऑन द एनर्जी पार्ट. एनर्जी इज द मेन न्यूट्रिएंट विच गिव्स यू पावर टू वॉक. कैलोरीज सब चीज़ में है, आप कुछ भी खाएं, कैलोरीज चीनी में भी है, कैलोरीज रोटी में भी है, दाल में भी है, फ्रूट में भी है, दही में भी है, दूध में भी है. यू नीड मिनिमम एनर्जी टू बी फंक्शनल. ज़्यादा नहीं, 1600, 1200 इतनी कैलोरीज आपको पूरी डाइट लेनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर हाइट एंड वेट. प्रोटीन्स, अब आपने सुना होगा प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटीन्स हमको बॉडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, टीनेजर्स ज़्यादा लेते हैं, यंगस्टर्स लेते हैं. तो जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे पास भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जैसे हम एज करते हैं प्रोटीन की डाइजेशन लो हो जाती है, दालें पचती नहीं हैं, नॉन वेज नहीं लेते, मिल्क सूट नहीं करता. बट प्रोटीन रिक्वायरमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे को यंग एज में थी. वाई? बिकॉज प्रोटीन इज गिविंग यू द मसल मास. प्रोटीन लो हो जाएगा तो मसल मास लो हो जाता है. आपने देखा होगा इस एज में आकर मस्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नर्वस इश्यूज हो जाते हैं, नर्व्स में पेन हो रही है, मसल डिजेनरेट हो रही हैं, लूज हो रही है बॉडी. फॉर दैट यू नीड मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन. हैवी प्रोटीन्स मत लीजिए, लीन मीट्स लीजिए, स्किम मिल्क लीजिए, दही लीजिए, दालें लीजिए. राजमा सूट नहीं करता, यू कैन गो फॉर धुली दाल. फैट एक बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक आ जाता है जब हम एल्डरली की बात करते हैं. हार्ट इश्यूज हैं, डायबिटीज़ है, कईयों को ओबेसिटी भी है, तो फैट लेना है कि नहीं लेना. आई वुड से गो फॉर गुड फैट्स बट नो फैट. ये नहीं करना कि फैट बिल्कुल एलिमिनेट कर दे डाइट में से. ट्राई टू गो फॉर गुड फैट्स. गुड फैट्स आपके ओमेगा-3, ओमेगा-6 फैटी एसिड्स भी देते हैं. नट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, आलमंड हो गया, सोयाबीन ऑयल, कनोला ऑयल, थोड़ा सा देसी घी, मस्टर्ड ऑयल. कीप ऑन चेंजिंग द ऑयल इन योर कुकिंग. Oil is necessary for everybody. Oil is necessary for everybody. You cannot eliminate total zero oil cooking नहीं कर सकते. क्योंकि फैट जो है बोन्स को लुब्रिकेशन देता है. अगर हम फैट नहीं लेंगे, एक तो हमारा विटामिन ए भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें वीकनेस रहेगी, बोन स्ट्रेंथ कम होगी, एंड जो लुब्रिकेशन नहीं होगा तो हमारे मूवमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, जो जॉइंट्स है पेन रहेगा ही रहेगा. दैट्स वाई गुड क्वालिटी ऑफ फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे फाइबर है, फाइबर हमें क्रूड फाइबर नहीं लेना बट सॉल्युबल फाइबर लेना है. जैसे इस एज में गोभी, ब्रोकली वगैरह कम क्वांटिटी में लेनी है, बट जो सॉल्युबल फाइबर है, जो आपका मल्टीग्रेन है, ये सब ले सकते हैं. घिया तोरी है, जैसे खीरा है, जो इनके फाइबर है ये सॉल्युबल है और इजीली डाइजेस्टेबल भी है, तो आप ये ले सकते हैं. जैसे आपने मिक्स वेजिटेबल बनाई है तो उसमें आप थोड़े मटर है, थोड़े गाजर है, थोड़ा गोभी है, ये सब डालेंगे तो गाजर ज़्यादा क्वांटिटी में डालें, क्योंकि जो गाजर का फाइबर है वो ज़्यादा सॉल्युबल है. क्योंकि गोभी से, ब्रोकली से आपको गैस प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है. एंड विटामिन, अगेन विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको लगता है कि मल्टीविटामिन आपको मेडिकेशन से लेना है, तो मतलब सप्लीमेंट्स लेना है तो आप ले सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूशन नहीं होना चाहिए.
2 महीने के बाद मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी छोड़ना ज़रूरी है। ट्राई टू मतलब बेसिकली कि अगर आप खाने के थ्रू लेंगे विटामिन एंड मिनरल्स, वो ज़्यादा बेटर करेगा। एंड वाटर इनटेक, बहुत लोगों को लगता है कि पानी हम पिएंगे तो बारी बारी वॉशरूम जाना पड़ेगा, बट वाटर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वाटर जो है एक मीडियम है हमारी बॉडी में, जितने सारा जो न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्शन एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाते हैं। वाटर इज़ अ मीडियम। अगर हम पानी में नहीं ले रहे हैं तो हम जो खा रहे हैं प्रॉपर्ली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो रहा है, बट वो डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। सो वाटर लेंगे और जितना वॉशरूम जाएंगे उतना हमारी बॉडी का टॉक्सिन्स भी रिमूव होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी का टॉक्सिन्स रिमूव होगा तो हमारा गट और हेल्दी रहेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से या स्वेट से रिमूव होता है या वॉशरूम से जाने से होता है। मोस्टली आज का जो यंगर जनरेशन है वो सारा टाइम एसी में रहती है, तो वो पानी पीती ही नहीं है। दैट्स वाई उनको हेल्दी डाइट खाने के बावजूद भी बहुत सारी डिफिशियंसीज हैं, बिकॉज उनको लगता है कि पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी उनको ठंड में वो ज़्यादा फिर चाय कॉफ़ी या कैफेनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, और चाय कॉफ़ी से आपका अंदर जो बॉडी का पानी है वो खींचता है बेसिकली पानी और ड्राई हो जाता है। हम जितना कैफीन लेते हैं हमारा वाटर जो है एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है और वाटर हमारा बॉडी से निकल भी जाता है। हाउ टू इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन एट पर्टिकुलर दिस एज? हेल्दी ईटिंग इज अबाउट मोर देन जस्ट फूड। गो फॉर शॉपिंग। शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग अबाउट द फूड, यस, Dresses and jewelry. Shopping about the food. शॉपिंग इज समथिंग। इफ यू गो फॉर शॉपिंग, जल्दी जल्दी भूख लगेगी, चलो लेट्स हैव समथिंग। और फिर जब आप खाने की शॉपिंग करोगे, इफ यू आर गोइंग इन अ ग्रुप, तो आप एक दूसरे को देख के हेल्दी चीजें लेना ही चाहोगे कि अच्छा उसने सीड्स लिए मैं भी ले लेती हूँ, अच्छा उसने देखो बेल पेपर्स लिए मैं भी यूज करती हूँ बेल पेपर। So when we work, अभी से when we cook together, go together, we learn also, और हमें motivation भी मिलता है। And we have gone to Ashana setup in Jaipur also, in Lavasa also for 4 to 5 days. And हमें वहाँ लगा कि as a group you enjoy a lot. And एक दूसरे से ना चाहते भी motivation मिलता है। We live in independent houses. बट एज अ सोसाइटी हमें लगता था वहाँ पर जब हम जयपुर और लवासा गए थे कि देखो सब वॉक कर रहे हैं, काश हम भी ऐसे घर में रहते कि जहाँ पर मोटिवेशन मिले हमें कि हम ना चाहते हुए नीचे उतर के वॉक करेंगे ही करेंगे ना। सो अगेन यू आर ऑल ब्लेस्ड कि आप एक सोसाइटी में रहते जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है जो विच वी लिविंग इन दिल्ली एंड एनसीआर विच वी क्रेव फॉर, कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। एंड कुकिंग विद अदर्स, कुकिंग विद अदर इज जस्ट यू नो इज अ स्ट्रेस डी स्ट्रेसर आई विल से। जब एक दूसरे से कुकिंग करते हैं इन अ जॉयफुल वे विदाउट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शंस। आई जस्ट वांट टू कोट वन यू नो इंसिडेंट्स और एग्जांपल। जब हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट से रोज एक्टिविटी कराते हैं एंड वी डोंट गिव एनी इंस्ट्रक्शंस। अभी आप नीचे एक्टिविटी आप लोग करेंगे, ऑल्दो बहुत सारे हैं, आई डोंट नो कि हम कितने लोगों को कर पाएंगे, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम विल ट्राई टू केटर एवरीवन। व्हेन वी डू ग्रुप एक्टिविटी एंड वी जस्ट वॉच कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा सामान देते हैं एंड दे यूज देयर माइंड, बिकॉज वी से फूड इज अ वेरी क्रिएटिव आर्ट। आप उसको अगर मैंने आपको आलू दिए हैं, गाजर दिए, मटर दिए, 5 लोग डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। अगर मैंने आपको कटलेट का भी सामान दिया, आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि जब खाने में इंस्ट्रक्शन मिले ना कि अब जीरा डालो, अब अदरक डालो, अब ये प्याज ऐसे होने चाहिए, तो खाना कभी अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपके ऊपर स्ट्रेस है कि अगर जीरा हल्का सा ज्यादा काला हो गया तो वो हो जाएगी प्रॉब्लम, देन यू डोंट एंजॉय। वी से एज वी आर इन अ मेंटल सेटअप, व्हेन वी एंजॉय एनीथिंग हमारा स्ट्रेस रिलीज होता ही होता है, चाहे वो हम जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे हम योगा कर रहे हैं, चाहे हम गॉसिपिंग भी कर रहे हैं। अगर हम विदाउट स्ट्रेस कर रहे हैं तो वी एंजॉय। एंड अगेन मेकिंग अ मील टाइम और सोशल एक्सपीरियंस। मैम वो आप बात करना भूल गए, जब हम बात करते हैं पेशेंट से तो हम कहते हैं कुकिंग इज द ओनली एक्टिविटी वेयर ऑल योर 5 सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड। यू कैन जस्ट टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट इट। Cooking is the only activity, only therapy where all your 5 senses are involved. Touch, taste, hear, smell. Even you listen to the sound of the tadka and the whistle. It is the only activity. एक्टिविटी आप देखिए, आर्ट थेरेपी है, योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, इसमें आपके 5 सेंसेस नहीं यूज हो रहे। So when we use 5 senses together, our happy chemicals serotonin and dopamine is produced like anything. तो आप अगेन जैसे पेशेंट का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जब पेशेंट इकट्ठे कुक करते हैं
तो दे enjoy like anything. एक तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज वी ऑल्सो से फूड इज अ ADL, फूड इज अ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग. नो वन कैन लिव विदाउट द फूड. So it's not any gender role anymore. We say कि you should train your boy as well as your girl how to cook your food. हमारे unfortunately कोविड के बाद हॉस्पिटल में बहुत बच्चे एडमिट हुए हैं. So we have kept washing machine also in our rooms कि they should know how to wash their clothes also. Although बहुत अटेंडेंट लड़ते हैं हमारे एडमिन से, हम पैसे दे रहे हैं ट्रीटमेंट के. हमारा बच्चे ने तो एक गिलास पानी नहीं उठाया, उसे बर्तन भी धुलवा रहे हो, देन वी से देन डोंट गेट एडमिटेड, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ योर थेरेपी. अगर आप अपना काम, अपना हाइजीन, अपना बर्तन नहीं धो सकते, अपने कपड़े नहीं धो सकते, आप कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, देयर इज नो पॉइंट. बिकॉज ATL इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवनस लाइफ, क्योंकि अपने हाथ पैर चलाने के लिए आपको ये काम करने ज़रूरी हैं. फुली ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें आप बेसिकली कपड़े धोइए. ऐसा नहीं कि आपने सेमी ऑटोमेटिक में धोने, हाथ से धोने, और उसमें डालना, निकालना और उसको फोल्ड करना तो आना ही चाहिए. अब तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, इतना तो बच्चा कर ही सकता है, नहीं तो मोबाइल पे लगा रहेगा. क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत पैम्पर कर दिया है बच्चों को, जो कि आई विल से कि थोड़ा सा अनकॉन्शियसली रॉन्ग पेरेंटिंग हो गई है. किसी ने जान के नहीं किया, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं मिलती हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं. बीइंग अ पेरेंट्स वी वांट टू गिव मोर देन व्हाट वी हैव गॉट, बट इसका जो इन फ्यूचर इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत है, जो हमने अब देख रहे हैं हमारे जो पेशेंट एडमिट होते हैं. Now, this is how to ensure accurate nutrition for older adults. Here are some of the best food to include, as well as some tips for meeting the nutrition need for elderly. Add flavor with spices and herbs, not the tadkas and mirchis. Avoid high cholesterol and high sodium flavoring like butter and bacon. Prefer fresh fruits and vegetables. Don't take canned food, preservative वाले खाने डब्बे में बंद हैं जिसको आपको ओपन करके सिर्फ खाना है. Frozen foods etc. They contain high level of sodium and sugar. That is not good for you. Encourage several small meals instead of 3 large meals. Small frequent meals in between your breakfast, lunch and dinner. Include dark leafy vegetables as they are packed with vitamins and minerals and antioxidants. Anything which is dark green, dark color, deep colored vegetables, deep color fruits. ब्रिंजल का पर्पल you won't get in any other fruit. चौलाई का जो कलर है, चौलाई का साग बनता है, you won't get it in any other vegetable. So whatever seasonal you are getting, whatever local food you are getting, try to include that in your diet. Include more of complex carbohydrates. Oats, brown rice, millets, whole grains, rather than white bread, pasta, maida. Choose bright colored fruits and vegetables like black bell peppers, berries that contain a lot of antioxidants. Including lean proteins like beans, groundnuts, dry fruits, eggs and chicken. Avoid refined sugar and simple carbohydrate like baked goods, white bread, white rice. They can spike your sugar levels and don't have much in way of nutrition value also. They don't contribute much in nutritive value. Make sure to add multivitamins and supplements for well-rounded senior nutrients. Don't forget to stay hydrated, have enough amount of water. That is all for today. Please you go. घी की बात की, लेकिन मक्खन की बात नहीं. सर मक्खन की बात की थी. मक्खन, अगर आप कौन सा मक्खन बात कर रहे हैं? अमूल बटर, येलो अमूल बटर, घर का बनाया हुआ. घर का बनाया हुआ मक्खन. क्वांटिटी मैटर सर. क्वालिटी तो है, अच्छा फैट है, बट वो 1 स्पून पर डे. अमूल बटर इज नॉट दैट गुड, क्योंकि उसमें सोडियम कंटेंट होता है, और इस लेवल में सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस कई बार हो जाता है, जो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम टेस्ट तो कराते नहीं हैं. एकदम से पता चलता है कि सोडियम लेवल कम हो गया, पोटेशियम लेवल कम हो गया, और सोडियम और पोटेशियम लेवल कम होने से कई बार हम डिलीरियम में चले जाते हैं. सो वी हैव टू मेंटेन दीज थिंग्स, कि अगर हमें लगा कि हमने आज ज़्यादा अचार खा लिया है या अमूल बटर ले लिया, तो नेक्स्ट डे मेक श्योर कि हम इन चीज़ को थोड़ा कम करें. यस सर. हाँ जी, क्या ले सकते हैं सर? सर अगर सूट करता है तो ले सकते हैं, बट दे शुड हैव स्किम्ड और टोन्ड मिल्क. अगर दूध नहीं सूट करता तो दही है, पनीर है, कस्टर्ड है, काउज मिल्क ले सकते हैं सर. बट दे नीड टू RBS चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अगर आपने मिल्क मिल्क ले लिया, फाइबर साथ में नहीं लिया. इफ वी से वी आर टेकिंग मिल्क इज अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, तो वी शुड हैव इनफ ऑफ फाइबर ऑल्सो.
क्योंकि इनफ ऑफ फाइबर लेने से जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है। अगर हमने फाइबर नहीं लिया, क्योंकि डायबिटिक के लिए हाई अमाउंट ऑफ फाइबर एंड गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, क्लियर सूप्स हैं, लस्सी है। अगर हम सिर्फ दूध लेते चले जाएंगे तो शुगर बढ़ेगी। अगर हम मतलब हाई फाइबर नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स अच्छे नहीं खा रहे हैं। हाई फाइबर एग्जांपल मैम हाई फाइबर वेजिटेबल, ओट्स, सैलेड हो गया, मल्टीग्रेन है। ड्राई फ्रूट्स का जैसे चबा नहीं सकते, पाउडर बना सकते हैं। मखाने का पाउडर बना के मखाने की खीर बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट और सीड्स के पाउडर बना के आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने सैलेड में, अपने दाल में, अपनी रोटी में। इट्स नॉट दैट कि हमें बहुत ऐसे ही आते हैं कि हम ड्राई फ्रूट तो चबा नहीं सकते। मल्टीग्रेन है, हमें सूट नहीं करता। मल्टीग्रेन को अगर आप दूध या दही के पानी या पनीर के पानी से गूंद देंगे और एक रोटी खाओगे, अगेन क्वांटिटी कई बार हमें देखना पड़ता है कि अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम सोचते थे 3 रोटी खा रहे हैं, अब हम 1 खा पा रहे हैं। डजंट मैटर। अगर 1 रोटी पे हम हेल्दी खा रहे हैं, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि इस आपकी एज में न्यूट्रिशन इज ओवर द क्वांटिटी। जितना भी हम कहें उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड इतना कुछ है मार्केट में। फाइबर में आप जैसे घिया, तोरी, टिंडे हैं, खीरे का रायता बना लीजिए, घिए का रायता बना लीजिए, घिए का भरता बना लीजिए। अगर आपको लगता है घिए चने की दाल है, लस्सी में डाल दीजिए घिया ग्रेट करके। बीटरूट का रहता है, बीटरूट का रहता है, बीटरूट की रोटी बना लीजिए। ओट्स का आटे में आप घिया कद्दूकस करके डालेंगे, बीटरूट कद्दूकस करके डालेंगे, उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती जो है। मैम ने आपको बोला ड्राई फ्रूट पाउडर, उसमें आप रोस्टेड चना भी डाल सकते हैं। उसको इकट्ठा मिक्सचर बना के सुबह 1 स्कूप चना वो दूध के साथ भी ले सकते हैं। प्रोटीन एंड फाइबर रिक्वायरमेंट्स आर मेट विद द मिल्क। Full fat Protein, full fat milk we don't recommend. Either toned or skimmed. हाँ जी सर। Yes, good fat omega-3 should be taken. Quinoa poha, yes, you can have. Saturated fats are bad fats. Ghee, but ghee minimum quantity, 1 teaspoon, 2 teaspoon of ghee is essential. Vanaspati is the bad and this refined oil जिसमें मिलावट है. Canola, sunflower, you should keep on changing the palm oil is also not good for you. जो आप बाहर नमकीन अगर लेते हैं तो उसमें आप प्लीज इंग्रेडिएंट्स देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल है तो दैट नमकीन इज नॉट हेल्दी. वी मेक आवर नमकीन इन पीनट ऑयल. और अब तो हम अपना आपको डिस्प्ले में हम दिखाएंगे, वी मेक आवर ओन ऑयल ऑल्सो नाउ. प्रोटीन कौन सा अच्छा है और कितना लेना चाहिए? कौन सा प्रोटीन की बात करें, सप्लीमेंट की या खाने सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए? सप्लीमेंट मैम हम रिकमेंड नहीं करते. वी आर डाइटिशियंस, वी जस्ट टेल यू द नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन और कितना होना चाहिए? एज पर योर बॉडी वेट. 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट. 15.1 50 my 15.1 No ma'am, 1 gram per body weight. If you weigh 50 grams, 50 kgs, so you should take 50 grams of protein. But that should come from natural sources. That is what we recommend. okay. How do we measure protein? That is, you have to take a course. You have to take a course. You have to consult. We have studied this only from last 5 years. When are you starting the course? Muttu Paata is very good for diabetics. सिंगाड़ा हाँ हाँ. बट इफ for इट diabetics, high सूट्स fiber यू, also. क्योंकि उसमें वो गर्म भी होता है मैम, तो ज्यादा खाने से अंदर ज्यादा तो नहीं अल्सर, बट कम ले सकते हैं. और 2 प्रोटीन बार कौन आप सा? चीला बना लीजिए, रोटी ले लीजिए. रॉ में It is good प्रोटीन for कौन diabetes. सा है? Glycemic अच्छा है, index तो low होता है. वेजिटेबल्स फाइबर ज्यादा होता है. सॉरी मैम, आई डिडंट गेट यू. प्रोटीन किसमें ज्यादा है? कौन सा अच्छा है जो लेना मैम चाहिए? देखिए, मूंग धुली दाल, मूंग साबुत दाल, मूंग छिलका, मसूर धुली दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन है. एंड देन सोयाबीन के जो आपके चंक्स आते हैं, ग्रैनुल्स आते हैं, वो अच्छा है. पनीर अच्छा है. ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं. चीज स्लाइस आप हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं. इफ यू टेक एग्स तो आप हफ्ते में 3 एग ले सकते हैं. चिकन खाते तो दिन 2 बार चिकन. अगर आप ये मल्टीग्रेन आटा लेते हैं तो उसमें आपका चने का आटा, काले चने का आटा है. घर में पनीर बनाते हैं तो पनीर का जो पानी फेंक देते हैं, दैट इज वे प्रोटीन, जिसके सप्लीमेंट्स बनते हैं. तो हैव इट लाइक दिस. ऐसे ले सकते हैं, उसमें आटा गूंथ सकते हो, उसको सूप में डाल सकते हो. How good is hello? नमक डाल के. पूरा ग्लास पी लिया. How good is amrud for a diabetic? Amrud is very good because it is the only fruit which has got the good quality of protein and high fiber. But अगर आपको गट सूट नहीं करता, क्योंकि कई बार अमरूद खाने से पर्टिकुलर अगर ज़्यादा खाने से स्टमक में लूज मोशन हो जाते हैं, क्रैम्प हो जाता है, तो दैट इज
फिर भी हम कहते हैं कि उसका बीज निकाल के अगर आप खाओगे तो दैट इज वेरी It is considered good for diabetes. गुड फॉर डायबिटीज. Excuse me. Excuse me. You know, when you're talking about palm oil, but you just see, I mean, even if you have any biscuits, anything, I mean, like little bit of light things as because Yes. everyone takes, right? So that is all. Everything is actually made of palm oil. That's what I observed. I mean, unless you make it at home. Yes ma'am, so that's why we recommend कि we should eat from the bakery. क्योंकि जो ये जितनी भी पैक्ड आइटम्स हैं, क्योंकि शेल लाइफ बढ़ाने के लिए मैम ये ऑयल यूज होते हैं. इफ यू रिमेम्बर एट योर यंग एज सिर्फ बेकरी के सामान मिलते थे, जो बेकरी के बिस्किट्स मिलते थे, बेकरी से नमकीन मिलता था, उसकी जो पैकिंग भी थी वैक्यूम पैकिंग नहीं होती थी. तो जितने भी पैक्ड आइटम्स हैं दे आर लिटरली बैड फॉर अस. अगर एक आधा बिस्किट हम खा रहे हैं दैट इज ओके, बट मैम बेकरीज अब आ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, जहाँ पर दे आर यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ घी ऑल्सो, बटर ऑल्सो. They have started using peanut oil for bakeries. Peanut oil दिल्ली also. में काफी बेकरीज है जिन्होंने palm oil बिल्कुल eradicate So कर दिया. peanut oil can be substituted for cooking also. no? Yes, 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 yes. Peanut oil, mustard oil and pure ghee, they are the best oil. But mix करके लेना है. But again, the quantity is very important. आप सब तेल मिला के 3 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है आपने. Mixing in the means ऐसे mix नहीं करना तीनों इकट्ठे. एक सब्जी किसी में, दाल देसी घी में. You don't have to mix all the 3 oil in one bottle and use If you that. remember, देखिए हमारे Different सरसों के तेल में सब्जियां बनती थी, Yeah. देसी घी में हमारे दाल वगैरह बनती थी, और जो हमारा फ्राइड चीजें हैं जैसे प्याज टमाटर का मसाला है, ये हमारा रिफाइन में होता था. हमारे खाने में अचार होता था. अचार इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ प्रीबायोटिक बेसिकली, और वो भी घर का अचार. बाहर के अचार में प्रिजर्वेटिव एंड कलर्स है और ऑयल है, वो हेल्दी नहीं है. अगर आप घर का अचार है जैसे नींबू का अचार इज अभी से बेस्ट, क्योंकि उसमें एक ऑयल नहीं होता, उसमें नमक अजवाइन जो काला नमक होता है, और जितना नींबू का अचार पुराना है उतना गट के लिए अच्छा है. एंड इज अ प्रीबायोटिक, आपके गट को बहुत क्लींस करता है वो. तो इसलिए Even diabetics can have yes, achar. yes, yes. और इनफैक्ट वी हैव स्टार्ट मेकिंग आवर पिकल इन सेंधा नमक, कि ताकि बीपी वाले भी ले सके. हम कहते हैं जिनको बीपी है, चटनीज है या अचार है, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप अदरक नींबू और हरी मिर्च को ही सेंधा नमक में डाल दीजिए, वो आपका अचार बन जाएगा. जो आपका सिरके वाला प्याज है, प्याज को सिरके में आप सेंधा नमक और 1-2-3 हरी मिर्च डाल देंगे, वो भी फर्मेंटेड है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है. बट दिस थिंग यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अभी मैम एक्टिविटीज भी हैं और उसमें भी 50-60 grams of protein in one day for vegetarians is difficult. It's to very come difficult, up. especially for females. It is very Yes. difficult. That's why That मैम we also consider it is difficult. For vegetarians, we both are So vegetarians. what It is is the difficult to option? make. What is the option? मैम अगेन जैसे रोटी को सप्लीमेंट कीजिए मल्टीग्रेन से. वी शुड हैव 2 कटोरी ऑफ दाल, लेस ऑफ वेजिटेबल, जैसे स्पेशली धुली हुई दाल है. वी शुड इंक्लूड स्प्राउट्स. पनीर रोज ले हम, घर का बना पनीर, कभी सैंडविच के फॉर्म में ले लें, कभी रॉ ले लें, कभी सब्जी बना लें. इस तरह से हमें करते कि When you're talking about sandwiches, bread is good for. मैम देखिए मल्टीग्रेन ब्रेड इज स्टिल गुड, Okay, but. नॉट आटा ब्रेड. उसमें आटा ब्रेड में मैम कलर है. इनफैक्ट आज जो आप कुकिंग करेंगे, हमने हमारे हॉस्पिटल में वी हैव आवर ओन बेकरी. वी डोंट बाय ब्रेड कुलचा पाव फ्रॉम मार्केट. हमारी अपनी बेकरी है जिसमें वी डोंट यूज कलर प्रिजर्वेटिव. इनफैक्ट वी हैव ब्रॉट टुडे व्हीट ब्रेड जिसमें 60% व्हीट है, 40% मैदा. Samples बिकॉज के लिए we have bought it today. We cannot Do you sell it? yes we do sell it. But now zero maida, the breads are also available in the market. या ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स भी आ रही है. वी आर ट्राइंग दैट, बट अभी हम सक्सेसफुल हैं ग्लूटेन फ्री में, बट हम मल्टीग्रेन में हो गए हैं एंड आटा ब्रेड में हो चुके हैं. Zero. Sardo you can have. Fermentation in any form is very healthy. So why can't you think of opening an outlet in Nirmay? There's a store which is going to come up. We stay very far away. So, this is